हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक हैं और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो लेट मी गिव द recap of the previous classes what we have done in the last 3 to 4 sessions. For your kind information, we are dealing with 14th century English literature, that is alternatively called as Chaucerian age, and we are done with the status of church, the translation of Bible, the Reformation, and the social, political, and economic changes in the 14th century, I mean, in the age of Chaucer. Apart from this, we are done with the brief introduction of Geoffrey Chaucer's Canterbury Tales with special references or special tales of the different characters, like the character of parson, knight, squire, pardon, nun priest, prioress, and clerk. So today's class is going to be based on one of the most important writer, a frequent asked writer in NTA UGC NET. JKPSC will definitely ask the question from 14th century, and this writer is going to be the part of the syllabus of the forthcoming 10+2 lectureship. All right. The writer is John Gower. All right, and John Gower is close contemporary. All right. He is close contemporary of Chaucer and Pearl poet and William Lagland. All right, William Lagland. अब देखें गाइज, जिस तरीके से चौसर का जो करियर था दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. लाइकवाइज the career of John Gower is also divided into 3 headings. I mean the literary career. I'm talking about the literary career only. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्लोज कंटेम्प्रेरी किसका था गाइज. चौसर का था, पर्ल पोइट का था और विलियम लैगलैंड का था. एंड एज यू ऑल नो, विलियम लैगलैंड इज मेनली नोन फॉर अ वर्क पियर्स द प्लोमैन, जो हम अभी आने वाले सेशन में ज़रूर करेंगे, आज ही करेंगे. तो गाइज मुझे याद है कि 2-1 साल पहले पर्ल पोइट से क्वेश्चन था कि हु इज़ पर्ल पोइट, राइट. So Pearl poet is alternatively called as Gawain poet, all right. Gawain. Gawain poet or Pearl poet is the same thing, all right. And Pearl poet is mainly known for a work, Sir Green, Sir Gawain, and Green Knight, all right. Sir Gawain and Green Knight is a poem written by Pearl poets. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है. Apart from Sir Gawain and Green Knight, Pearl poet is also known for a trilogy, and there are different trilogies in literature like African trilogy, Irish trilogy, and so on and so forth. So Pearl poet is mainly known for a poem, Pearl, Patience, and Cleanness. All right. सो क्वेश्चन गाइज बन सकता है कि पर्ल पोइट ने कौन सी ट्रिलॉजी लिखी है. तो पर्ल, पेशेंस एंड क्लीननेस लिखी है. सर गाउन एंड ग्रीन नाइट इज ऑल्सो अ पोम विच इज रिटन बाय पर्ल पोइट, एंड पर्ल पोइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गवन पोइट. ऑल राइट. अब इसके अलावा लेट मी कम टू द पॉइंट डायरेक्टली, लेट मी कम टू द टॉपिक मोर पर्टिकुलरली. वी आर गोइंग टू डील विद John Gower, and John Gower was also the friend of a close friend of Geoffrey Chaucer, and Geoffrey Chaucer जॉन गॉवर को क्या बोलते थे? मॉरल गॉवर बोलते थे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मॉरल गॉवर का जो कॉन्सेप्ट है गाइज, वो जोफ्री चौसर ने अपने किस वर्क के अंदर यूज करा है, यानी किस वर्क के अंदर चौसर रेफर टू जॉन गॉवर एज मॉरल गॉवर. दैट वर्क इज ट्रॉयलस एंड क्रेसीडा और क्रेसीड, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप बोलें, बस टाइटल याद रखें. अब मैंने आपसे पहले बात करी गाइज कि जिस तरीके से चौसर का करियर डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर डिवाइड था, लाइकवाइज जॉन गॉवर जो थे इनका करियर भी 3 हेडिंग्स में डिवाइड था. फर्स्ट वाज द लैटिन हेडिंग. ऑल राइट. फर्स्ट वाज द लैटिन करियर ऑफ जॉन गॉवर. और लैटिन करियर में इन्होंने एक वर्क लिखा. That work is mirrored
diome, mirror diome, all right? And alternatively, it is also called as speculum hominis, and the English translation of this title is Speculum Meditation, all right? This work deals with the corruption of church and Christianity. All right, as we all know, the status of the Christianity and church during 14th century was very corrupt. It was hotbed of profligacy and materialism. So to shun this profligacy and materialism and corruption from the 14th century, there was a movement led by this William Lagland called as Reformation movement, all right? और रेफॉर्मेशन मूवमेंट के जो फॉलोअर्स थे उनको क्या कहा जाता था? लोलार्ड्स कहा जाता था गाइस, वो मैंने पहले वीडियो में बता दिया है. सो मिरर डायलोम जो है डील्स विद द करप्शन ऑफ चर्च एंड मोर पर्टिकुलरली इट इज, आई मीन इन दिस वर्क देयर इज यूनियन ऑफ सिन एंड इवल. एंड सिन एंड इवल जो हैं वो बर्थ देते हैं ग्लॉटनी को, एवराइस को, जेलसी को, जो 7 सिस्टर्स बताया जाता है जिनको, राइट? जिसमें आपकी ग्लटनी है, एवरेस्ट है, जेलसी है, आयर है. तो यहाँ पे उनका प्रोडक्शन होता है. तो क्वेश्चन गाइस एग्जाम में बन सकता है कि किस वर्क के अंदर जो 7 डेडली सिंस है उनको मेंशन करा है. तो मिरर डायलोम में करा है, ऑल राइट, जो कि एक लैटिन वर्क है, आई मीन लैटिन वर्जन है जो जॉन गॉवर ने लिखा था. इसके अलावा गाइस जब सॉरी इट्स नॉट इन लैटिन, पार्डन मी, इट्स इन फ्रेंच, ऑल राइट. ये फ्रेंच में है गाइज, माफ़ करिएगा, ये वर्क जो है वो फ्रेंच में है, लैटिन में नहीं है, माफ़ करिएगा मुझे, ऑल राइट. सो इसके अलावा मैंने आपसे बात करी थी कि 7 डेडली सिंस का जो जिक्र है, जो 7 डेडली सिन का मेंशन है, वो जोफ्री चौसर ने पार्सन की टेल में भी करा है, जो कि कैंटरबरी टेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. गाइज ये फ्रेंच करियर में वर्क लिखा है, राइट. अब नेक्स्ट जो करियर था, आई मीन लिटरेरी करियर ऑफ जॉन गॉवर, दैट वाज टाइटल्ड एज, नेक्स्ट करियर वाज टाइटल्ड एज लैटिन करियर, ऑल राइट. अब लैटिन करियर है, पहला फ्रेंच था गाइज, माफ करिएगा. लैटिन करियर में जो चौसर ने, आई मीन जॉन गॉवर ने, चौसर ने नहीं, जॉन गॉवर की बात कर रहा हूँ, जॉन गॉवर ने लैटिन करियर में जो वर्क लिखा था दैट वाज टाइटल्ड एज वॉक्स क्लेमेंटिस. और गाइज यूजीसी नेट के अंदर वॉक्स क्लेमेंटिस से क्वेश्चन था. मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोल रहा हूँ. फ्रेंच करियर में जोफ्री चौसर ने नहीं, जॉन गॉवर ने कौन सा वर्क लिखा था? मिरर डायलोम. और जॉन गॉवर ने अपने लैटिन करियर के अंदर वॉक्स क्लेमेंटिस लिखा है. और वॉक्स क्लेमेंटिस से यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चन था. और देखें कहीं ना कहीं पीएससी का एक ट्रेंड रहता है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछते हैं. बट आई वाज द पार्ट ऑफ द लास्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर. मैंने लास्ट रिक्रूटमेंट में वाइवा दिया था और वहाँ पे जो इंग्लिश लिटरेचर का यानी इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर था दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट. वो बहुत टफ पेपर था, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं था, ऑल राइट. तो रेपिटेशन पे ज़्यादा रिलाई ना करें, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करें. कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी का मतलब क्या होता है गाइज? कि फॉर एग्जांपल अगर आप चौसर को पढ़ रहे हैं तो चौसर के सराउंडिंग में जो भी राइटर्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं, जो भी लिटरेरी टर्म्स हैं, उनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ऑफ प्रेपरेशन. सो लेट मी कम टू द पॉइंट. वॉक्स क्लेमेंटिस से क्वेश्चन ये था गाइज कि विच वर्क इज रिफ्लेक्शन ऑफ द पीजेंट रिवोल्ट. सो वॉक्स क्लेमेंटिस जो है वो पीजेंट्स रिवोल्ट की रिफ्लेक्शन है, ऑल राइट. और पीजेंट रिवोल्ट इज अ मूवमेंट एसोसिएटेड विद 14th सेंचुरी लिटरेचर. सो क्वेश्चन गाइज एग्जाम में पूछा गया था कि वॉक्स क्लेमेंटिस जो है वो किस पॉलिटिकल या हिस्टोरिकल मूवमेंट को रिफ्लेक्ट करता है. तो इट रिफ्लेक्ट्स पीजेंट्स रिवोल्ट, ऑल राइट. और ये जो वर्क है इसमें पीजेंट रिवोल्ट को जॉन गॉवर ने क्रिटिसाइज भी करा है, इन अ वे रिफ्लेक्ट भी करा और क्रिटिसाइज भी करा है. क्यों? क्योंकि पीजेंट रिवोल्ट से पहले इंग्लैंड 14th सेंचुरी के पीरियड में एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम और एपिडेमिक से गुजर रहा था, दैट वाज ब्लैक डेथ. अभी उसका इम्पैक्ट ख़त्म भी नहीं हुआ था तो पीजेंट्स ने अब एक रिवोल्ट कर दिया, रिबेलियन कर दिया. तो यहाँ पे इट्स वेरी पर्टिनेंट टू मेंशन
अगेन दैट वर द हीरोज ऑफ पेजेंट रिवोल्ट, तो जॉन टेलर था, जिसको टेलर्स रेबेलियन भी कहा जाता है इस मूवमेंट को, जॉन बाल था और जैक स्ट्रॉ थे। ऑलराइट, मैं रिपीट कर रहा हूँ गाइस, जॉन टेलर, जॉन बॉल और जैक स्ट्रॉ वर द हीरोज ऑफ peasant revolt. All right. Next and last is the English career of John Gower. So English career of John Gower के अंदर जॉन गोवर ने एक वर्क लिखा है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. That work is titled as Confessio Amantis. Confessio Amantis, all right. और as the title suggests, Confessio Amantis का मतलब क्या है कि there is confession, all right, somebody is confessing something. So यहाँ पे किस चीज़ को confess किया जा रहा है? love को confess किया जा रहा है. somebody is confessing love. कौन कर रहा है वो मैं बता रहा हूँ. पहले इंग्लिश टाइटल लिखेंगे इसका, it's a lover's confession, all right, lover's confession. इस वर्क के अंदर there is an old age lover, all right, and he is confessing his love to, तो किसको कन्फेस कर रहा है अपने लव को? एक मिनट गाइस दे दें मेरे को. he is confessing his love to, you know, a disciple of goddess Venus, all right. और इसीलिए इस वर्क के अंदर there is praise of goddess Venus, all right. और इम्पॉर्टेंट बात क्या है Confessio Amantis की? This work was dedicated by John Gower to Geoffrey Chaucer. Very very important. ये वर्क जो है जॉन गॉवर ने जोफ्री चौसर को डेडिकेट करा है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डेडिकेशन जो है वो जोफ्री चौसर को दी है इस वर्क की जॉन गॉवर ने, ऑल राइट. एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात गाइज क्या है? दिस वर्क इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्रेम नैरेटिव. और फ्रेम नैरेटिव का मतलब क्या होता है गाइज? स्टोरी विद इन अ स्टोरी. इसका ऑल्टरनेट टाइटल जो है वो स्टोरी विद इन अ स्टोरी भी कहा जाता है. तो लिटरेचर के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं जो फ्रेम नैरेटिव हैं. फॉर एग्जांपल जो मुझे अभी याद आ रहा है, हेमलेट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्रेम नैरेटिव. लाइकवाइज Confessio Amantis is the best example of frame narrative. Okay, so it was all about John Gower. अब जो नेक्स्ट राइटर आज की क्लास में हम डील करेंगे, इसके बाद हम सिर्फ एक कंपोनेंट ऑफ 14th सेंचुरी से लेफ्ट है, वो हम करके 14th सेंचुरी को वाइंड अप करेंगे. सो नेक्स्ट राइटर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर इज विलियम लैगलैंड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विलियम लैगलैंड. देखें गाइज, माइनर राइटर्स की लाइफ स्पेन को याद रखना कोई भी ज़रूरी नहीं है, कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है. हाँ, कोई मेजर राइटर है जैसे वर्ड्सवर्थ है, विलियम शेक्सपियर हैं, क्रिस्टोफर मार्लो हैं, राइट, क्योंकि क्रिस्टोफर मार्लो को और शेक्सपियर का बर्थ ईयर सेम था, ऑल राइट. और ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि जॉन गॉवर जो थे वो तो क्लोज कंटेम्प्रेरी थे ही थे, लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो की डेथ कब हुई और शेक्सपियर की डेथ कब हुई, ये आप पे क्वेश्चन इम्पोज किया जाता है आज की क्लास के लिए. सो विलियम लैगलैंड की अगर हम बात करें गाइस, तो विलियम लैगलैंड वाज आल्सो क्लोज कंटेम्प्रेरी ऑफ चौसर एंड गॉवर, आई मीन जॉन गॉवर. इसके अलावा विलियम लैगलैंड का एक ही इंपॉर्टेंट वर्क है, दैट इज पायर्स द प्लोमैन. All right, Piers the Plowman is an important work written by William Lagland. Particularly इस वर्क का ऑनर क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ. कंप्लीट टाइटल की बात करेंगे, द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग Piers the Plowman. ऑल राइट. तो सबसे पहले गाइज ये विजन किस चीज़ की है? तो इट्स विजन ऑफ मेलवेरियन हिल्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स विजन ऑफ मेलवेरियन हिल्स एंड इट्स डिवाइडेड इनटू 8 कैंटोज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और नंबर ऑफ विजन्स भी एक बार एग्जाम में पूछा है, किसी स्टेट सेट एग्जाम में पूछा था. तो 8
विजन्स के साथ प्लस 2 विजन्स जो हैं वो प्लस 1 विजन, तो टोटल जो विजन्स हैं वो 11 है। ये याद रखेंगे आप, कैंटोज जो हैं वो 8 हैं और विजन्स 11 है। सो कैंटो का मतलब क्या होता है गाइस? कैंटो इज डिवीजन ऑफ अ लॉन्ग पोम, लाइकवाइज एक्ट इज अ डिवीजन ऑफ अ स्टोरी और अ प्लॉट। सो कैंटो जो है वो लॉन्ग डिवीजन होती है, जैसे डॉन जॉन लॉर्ड बायरन का, दैट इज डिवाइडेड इनटू कैंटोज। चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज इज आल्सो डिवाइडेड इनटू कैंटोज। ऑलराइट, तो कैंटो इज डिवीजन ऑफ अ लॉन्ग स्टोरी। सो क्वेश्चन बन सकता है गाइस कि विजन किसकी है? मेल्वेरियन हिल्स की है। कैंटोज कितने हैं? 8 हैं और 11 विजन्स हैं। ऑलराइट, और गाइस पायर्स जो हैं, पायर्स इज सिंबल ऑफ क्राइस्ट एंड समैरिटन, SAMARTIAN, समैरिटन। ऑल राइट, ये समैरिटन और क्राइस्ट का क्वेश्चन गाइस एग्जाम में पूछा गया यूजीसी के, एक्सक्यूज मी, तो ये पूछा जा सकता है कि किसका सिंबल है। ऑल राइट, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल एसोसिएटेड विद पायर्स द प्लॉमैन इज इट्स बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ Pius the Plowman is best example of morality plays. Very, very important. Morality plays. All right. And morality plays का मतलब क्या है कि इन plays के अंदर morals को teach किया जाता है। और दूसरा important feature morality plays का क्या है? वो allegorical form में होते हैं। surface level पे कुछ और meaning चल रहा होता है और underneath कुछ और meaning चल रहा होता है। All right. इसके अलावा आपको पता है कि miracle plays और मिस्ट्री प्लेज क्या होते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि मिरेकल और मिस्ट्री प्लेज क्या होते हैं। मैं ओरिजिन ऑफ ड्रामा को जब डील करूँगा इसके बाद, आई मीन रेनेसां एज को जब मैं डील करूँगा, देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अपॉन ऑन मिरेकल प्लेज, मिस्ट्री प्लेज एंड मॉरलिटी प्लेज, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी क्वेश्चन बनता है कि मॉरलिटी प्लेज, मिरेकल प्लेज और मिस्ट्री प्लेज किस चीज़ से डील करते हैं, क्योंकि इनके डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स से, इनके डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स हैं। ऑल राइट, सो मैं बात कर रहा था पायर्स द प्लॉमैन की, इट्स अ मॉरलिटी प्ले, और इसके अंदर ना मीड एक कैरेक्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीड इज़ अ फीमेल कैरेक्टर एंड शी रिप्रेजेंट्स ग्रीड एंड करप्शन। क्योंकि देखें गाइस, जो भी वर्क लिखा जाता है दैट वर्क इज क्लियर कट रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग इंसिडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एज। तो करप्शन वहाँ पे थी 14th सेंचुरी के अंदर। तो मीड एक कैरेक्टर है जो कि करप्शन को और ग्रीड को रिफ्लेक्ट करता है। ऑल राइट, सो गाइज विलियम लैगलैंड का जो पायर्स द प्लॉमैन है, कंप्लीट टाइटल इज इम्पॉर्टेंट, विजन्स कितनी इम्पॉर्टेंट है, पायर्स क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड पायर्स द प्लॉमैन इज अ सटायर ऑन ecclesiastical and religious follies of 14th century. ecclesiastical क्या है? It's also related to religion, है ना, eclecticism. So ये जो satire है, ये ecclesiastical happenings or the religious happenings or the religious follies or the corruptions or the materialism of 14th century पे based है. All right. So guys, this was all about today's class. We are dealt with John Gower एंड विलियम लैगलैंड। जॉन गॉवर का करियर जो है फ्रेंच, लैटिन और इंग्लिश में है। इसके बाद विलियम लैगलैंड की मैंने बात करी, पायर्स द प्लॉमैन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, उसको डील करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल, जो भी फैक्ट्स मैंने आपसे बात करी वो इंपॉर्टेंट है। और अब वी आर लेफ्ट विद ओनली वन कंपोनेंट ऑफ 14th सेंचुरी, दैट इज़ इंग्लिश चौसेरियंस एंड स्कॉटिश चौसेरियंस। क्वेश्चन वहाँ से भी बनता है। तो जब तक मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँ तब तक अपना ख्याल रखें, वीडियोस को लाइक करते रहें। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल, जितने भी मेरी वीडियोस देखते हैं गाइस, आप यकीन मानिए यू आर इन सेफ हैंड्स, यू आर इन सेफ हैंड्स। मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है लिटरेचर का वो ज़्यादा नहीं है। आई एम स्टडिंग लिटरेचर सिंस 15 ईयर्स। ऑल राइट, एंड आई एम द पार्ट ऑफ डिफरेंट मेजर एग्जामिनेशन एसोसिएटेड विद लिटरेचर। आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो UGC नेट JK सेट क्वालिफाइड हैं, तो इसी तरीके से मैं भी हूँ। एंड लास्ट टाइम का जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर बाय रिटर्न ऑफ द लास्ट रिक्रूटमेंट ऑफ 2024 ऑफ JKPSC असिस्टेंट प्रोफेसर। उस एग्ज़ाम में जो पेपर था दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें बहुत मेटाकुलसली और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कॉन्सेप्ट्स को डील करना होगा। सरफेस लेवल के से कुछ भी नहीं आने वाला। तो गाइज़ अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून नेक्स्ट।